सर रिकॉर्डिंग सर ऑन कर दीजिए। हाँ हाँ कर दिए। How enzyme is lowering the activation barrier because there is a transition state and because the energy state of the transition state is higher. So an enzyme is required to perform this reaction as a catalyst. What enzyme does? What enzyme does? Because of the non-covalent interactions which the enzyme establishes with its substrates, okay, and for a short period of time, transition state कोई stable state नहीं है, for a short period of time it appears. So because of those interactions which has been developed between the enzyme and the substrate, and substrate is fitted in its active site, so that releases some energy because that is a favorable condition. New bonds are getting formed. Okay, so as I have already told you, when the bonds are formed, then energy is released. When bonds are broken, then energy is consumed. बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कंज्यूम होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है. तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, although that is a non-covalent bond, but still there is an interaction, and that is stable interaction for a short period of time, very short period of time, fraction of second के लिए ही सही. So it lowers the activation barrier in this way. ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे. अब आगे बढ़े. यहां तक आपको क्लियर है? आगे बढ़े कि नहीं, या पीछे कुछ? यस सर. यस सर. देखिए क्या लिखा हुआ है. अभी जो हम बताए आपको वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम पढ़ देते हैं. द पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ का जो रास्ता है, उस रास्ते में मार्गदर्शक समझ लीजिए एंजाइम है. वो उसको हाथ पकड़ के ले जा रहा है. रास्ता डिफिकल्ट है बिकॉज एक्टिवेशन बैरियर इज देयर, सो द राइड इज bumpy. So what enzyme is doing? Enzyme is facilitating reactants को पकड़ के उसको अपने एक्टिव साइट में घुसा लिया, and then the reaction starts. So the path from reactants to products almost invariably involves an energy barrier. So this is a bumpy ride called the activation barrier. Figure 1 to 8. This is that figure. So without enzyme or without any catalyst, enzyme is a biocatalyst. Okay. There are other types of catalysts are there, also there. Some are chemical catalysts. Okay. कुछ metal ions जो है वो catalyst for a particular type of reaction. Some metal ions which form coordination compounds that also work as catalyst. So in the living system, the catalyst is of biocatalyst type, and that is enzyme or riboenzymes. Okay, and riboenzymes you can say. Enzymes protein हो गया, riboenzyme हो गया आपका RNA. वो biocatalyst है. So in the presence of the biocatalyst, you can notice this red line. Activation barrier is reduced now because of the formation of interaction
between substrate and the enzyme itself in its active site. So this activation barrier is lowered now. So now the cell will perform this conversion of or the breakdown of reactants into the products will be done easily in the presence of enzyme. आपको दिख रहा होगा यहाँ थोड़ा सा एलिवेशन है रेड में, स्टिल इट इज बम्पी, ओके, बट ये आपको समझाने के लिए ये एग्जाम है. दिस इज डायग्रामेटिक. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यहीं से तुरंत लुढ़कना शुरू हो जाएगा. दैट इज व्हाई द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन रेट इज वेरी हाई. ओके, called the activation barrier that must be surmounted for any reaction to proceed. ठीक है, एक्टिवेशन बैरियर के ऊपर सरमाउंटेड मतलब चढ़ना, यहां तक अचीव करना जरूरी है, तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा. The breaking of existing bonds and formation of new ones generally requires first a distortion of existing bonds. पहले existing bond का distortion होगा. Requires a distortion of existing bonds to create a transition state of higher free energy than either reactant or product. Transition state का always जो है energy state higher है, reactant की तुलना में भी, product की भी तुलना में. Okay, so the highest point in the reaction coordinate diagram जो अभी दिखाया गया इस फिगर में आपको, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ इसका, ये हुआ. अगर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, ब्लू वाला है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, और कैटलाइज्ड है, देन दिस पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट. सो दिस हाईएस्ट पॉइंट इज the highest point in the reaction coordinate diagram represents the transition state. That highest point is transition state and the difference in energy between the reactant in its ground state. Reactant जो है ground state पर है यहाँ पर, ठीक है. तो इस ground state पर जो G है, delta G, and the activation barrier का delta G, that will be, आप दोनों को subtract करोगे तो you will obtain a positive value. Okay, not a negative value, positive value, क्योंकि आप ट्रांजिशन स्टेट का डेल्टा जी और ग्राउंड स्टेट का डेल्टा जी दोनों के बीच में, यहां से यहां के बीच में जो डेल्टा जी है उसमें क्या अंतर आया इस रिएक्शन के. तो अनकैटलाइज का डेल्टा जी, ग्राउंड स्टेट में जो उसमें इन जी था, तो इसको कैसे निकालोगे, जी इसका जी माइनस इसका जी, चेंज इन जी, फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी is of higher free energy than either reactant. The highest point in the reaction coordinate diagram represents the transition state, and the difference in energy between the reactant and its ground state and its transition state is the activation energy. So this delta G is the activation energy required for uncatalyzed reaction, and this delta G, the small one, red diagram line wala jo hai, this is the energy required by the catalyzed reaction, activation energy. So an enzyme catalyzes a reaction by providing more comfortable fit. अब देखिए ये इसके लिए ये फोर्स एंजाइम जो हम कारण बता रहे हैं वो यही कारण है. क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर. एन एंजाइम कैटलाइजेज ए रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग ए मोर कंफर्टेबल फिट फॉर द ट्रांजिशन स्टेट. कहने का मतलब कॉलन दिया हुआ है, दैट मीन्स a surface that complements the transition state in stereochemistry, यानी जो स्टीरियो आइसोमर है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री, आइसोमर स्पेसिफिक भी है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री देयर इज ए ग्रूव इन द एक्टिव साइट, तो उसमें वो फिट होगा, परफेक्टली फिट. ओके, और उस ग्रूव में क्या है,
polarity hai, there will be polar groups, non-polar groups. So polar groups will interact with the polar group of the substrate. Polar group of the enzyme will interact with the polar group of the substrate. If there is any charge group in the active site, then it will interact with the charge group present on the substrate. So by this stereochemistry ये fit भी हो गया substrate और enzyme, polarity भी दोनों का align हो गया, active site में जो है substrate के मुताबिक polar groups present रहते हैं, and charge also. So इसकी वजह से एक वो फिट हो गया, तो लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, क्योंकि जब एंजाइम से फिट हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाने की वजह से, चूंकि वो हायर एनर्जी स्टेट में था तो लोअर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. बट दैट फिट थिंग इज स्टेबल थिंग, ऑल्दो इट इज स्टेबल फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट because that reaction is favorable, delta S is coming down, okay, as well as delta H is also coming down, delta S is increasing and delta H is coming down. So सिर्फ 6 लोग हैं, 5 लोग आए हैं. Okay, so the binding of enzyme to the transition state is exergonic, एनर्जी लगेगा उसमें, and the energy released by the binding reduces the activation energy of the reaction and greatly increases the reaction rate. इसको हम डिटेल में एंजाइम के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है. ये कह रहा है बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द ट्रांजिशन स्टेट इज एक्सर्गोनिक एंड द एनर्जी रिलीज्ड बाय दिस बाइंडिंग रिड्यूसेस, ठीक है. तो ये बाइंडिंग एंजाइम और जब ट्रांजिशन स्टेट से बाइंड कर रहा है तो ये एक्सर्गोनिक है. हम बता रहे थे कि कुछ एनर्जी रिलीज हुआ. क्यों एनर्जी रिलीज हुआ? बिकॉज ऑफ दिस, दैट सरफेस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट. Inner surface of the active site is complementary to the outer surface of the substrate. Okay, stereochemically fit भी होगा, and the polar group are also getting aligned. Charge group are also getting aligned with respect to enzyme. So this is exergonic, and in this process, the energy released by this binding reduces the activation energy. Same energy जो release हुआ वही activation energy में compensate कर लिया for the reaction and gradually increases the reaction rate. समझ में आया आपको? Yes, sir. अगर नहीं आया तो पूछ सकते हैं दोबारा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. A further contribution to analysis catalysis occurs when 2 or more reactants bind to the enzymes. हाँ, अब ये देखिए एक और बात हो जाती है. जैसे ये वाले रिएक्शन जो था जिसमें एटीपी का आप सिर्फ हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं, तो सबस्ट्रेट तो एक ही है, ठीक है. तो ये जो एंजाइम कपल्ड रिएक्शन का जो एंजाइम है, अगर हेक्सोकाइनेज है, ओके, एटीपी बहुत सारे रिएक्शन के साथ कपल्ड है. मेन रिएक्शन तो यही था, ग्लूकोज, ये तो कपल्ड रिएक्शन. मेन रिएक्शन तो था ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिविंग राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. मेन रिएक्शन वही था, उसी के लिए कपल हुआ. तो सेल में और भी सारे बहुत सारे कपल्ड रिएक्शन है. तो ऐसा नहीं है कि ये जो एंजाइम यहाँ हेक्सोकाइनेज है उसका सबस्ट्रेट एटीपी है. सम अदर एंजाइम आल्सो उसका भी सबस्ट्रेट एटीपी है, ठीक है. जैसे आपका ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा एंजाइम जहां पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, भूल रहे हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है. वहां कौन सा एंजाइम है देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है. तो वहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो उसका भी सबस्ट्रेट एटीपी है, उस एंजाइम का भी, ठीक है. लेकिन ये जो एंजाइम हेक्सोकाइनेज है उसका सबस्ट्रेट एटीपी प्लस ग्लूकोज दोनों है. तो उसको ये रिएक्शन करवाने के लिए ग्लूकोज ही सिर्फ मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, एटीपी भी मिलना चाहिए साथ ही साथ. ओके, ग्लूकोज और एटीपी एक साथ आएगा तभी रिएक्शन होगा. तो अकेला जहां पर एक ही रिएक्टेंट है उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो मिल गया. प्रोबेबिलिटी इज हाई टू गेट वन if in that reaction only one reactant is involved. To get that reactant the probability is high. अब 2 reactant है
तो एक रिएक्टेंट मिल गया, उसका प्रोबेबिलिटी कुछ होगा, फिर दूसरा रिएक्टेंट मिला, उसका प्रोबेबिलिटी कुछ होगा। अब दोनों एक साथ मिले, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दैट प्रोबेबिलिटी, सो दैट विल बी लोअर वैल्यू। दोनों एक साथ मिले, जैसे कोई अगर ताश खेलता होगा, 3 इक्का आना एक साथ, कितना कम चांस है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट नंबर आना, ओके, कुछ भी वो तो हर बार आएगा, ज्यादा चांस है प्रोबेबिलिटी। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मेटाबोलोम है, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स हैं, सब टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो एक ही साथ एटीपी मिले और ग्लूकोज मिले अगर इसको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। एक अकेला मिलने के बजाय एक का जो प्रोबेबिलिटी होगा, अगर 2 हो गया तो दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी विल बी फर्दर, वो उससे भी कम होगा। अगर 3 रिएक्टेंट है तो तीनों का एक साथ मिलना, फिर तीनों का प्रोबेबिलिटी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे भी कम हो जाएगा। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि फर्दर कंट्रीब्यूशन टू कैटालिसिस अकर्स when 2 or more reactants bind to the enzyme surface, okay? तो enzyme surface close to each other and with stereospecific orientation that favors the reaction। चलिए, मिल गया, क्योंकि मिल जाने के बाद उसके सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट से बाइंड कर गए, ठीक है, लेकिन एक्टिव साइट्स में जब वो फिट है, 2 से ज्यादा सबस्ट्रेट, तो उस समय भी वो स्टीरियो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में है। जहां जहां पर उसका बॉन्ड फॉर्म होना है, तो दोनों तरफ के एटम एक दूसरे के आमने सामने जक्स्ट्रापोज्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन नाउ बिकम्स हाई। अगर साइटोप्लाज्म में था तो टकरा रहा था एक दूसरे से किसी भी डायरेक्शन में, सपोज 2 आदमी को अगर हाथ मिलाना है तो दोनों आमने सामने से आएगा तभी हाथ मिलेगा, तो वो बॉन्ड बना, ठीक है। अगर एक आदमी उल्टा चल के आए और दूसरा आदमी सीधा चल के जा रहा तो कैसे हाथ मिलाएगा, दिक्कत होगा। तो इसी तरह बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो फॉस्फेट गया 6th कार्बन पर, तो ग्लूकोज का 6th कार्बन शुड बी एक्सपोज टुवर्ड्स एटीपी का फॉस्फोराइल ग्रुप, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड जो है उसकी तरफ एक्सपोज्ड होगा, उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे। ऐसा नहीं कि उससे दूर होगा, अवे होगा इन द एक्टिव साइट। सो दे आर ब्राउट टुगेदर इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी that favors the reaction. This increases by orders of magnitude the probability of production collisions between reactants, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दोनों का ओरिएंटेशन एक अलाइन हो गया अच्छे से बॉन्ड फॉर्मिंग, तो उससे उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है फॉर ए सक्सेसफुल रिएक्शन टू अकर, प्रोडक्टिव रिएक्शन, क्योंकि दैट विल बी अ प्रोडक्टिव कॉलिजन बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स। लेकिन अगर एंजाइम नहीं है तो रिएक्टेंट ऐसे आवारा की तरह घूम रहा है, उसका पैर ऊपर है, मुंडी नीचे है, समझ लो इस तरह से, किसी भी ओरिएंटेशन में उसके अलग अलग एटम्स हैं, ऑल्दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, बट वो भी तो ऊपर नीचे, उल्टा नीचे, दायां बायां हो सकता है, उसका भी एक पर्टिकुलर मतलब रिएक्शन होने के लिए वो रिएक्टेंट जो है एक दूसरे से अपोज्ड होंगे। कोई कुछ कह रहा है, कुछ पूछना है किसी को क्या? ओके, सो दिस इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों अच्छे से अलाइंड है। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज फैक्टर्स सेवरल अदर डिस्कशन, एंजाइम में ये फैक्टर है और भी बहुत फैक्टर है, एंजाइम काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। लेकिन और इस वजह से एक तो दोनों को नजदीक ले आया, प्लस दोनों को नजदीक लाने से एक बार जब बाइंड कर गया, ओके, क्योंकि दिस विल गिव यू ए फिट थिंग। सो साइटोप्लाज्म में अगर सबस्ट्रेट है और एक्टिव साइट खाली है, एंजाइम भी है, तो सबस्ट्रेट अपने आप एक्टिव साइट में जाके फिट हो जाएगा, जैसे चुंबक एक तरह से चिपकता है, छोटा कण को फिट कर लिया, वो चिपक चला गया, तो प्रोबेबिलिटी उसका बढ़ गया कॉलिजन का। तो इस सब और अदर सब फैक्टर मिला करके
एंजाइम का जो रेट है दैट बिकम्स बिलियन टाइम्स हायर ग्रेटर देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस, 10 to the power 12 times। 10 to the power 12 बहुत बड़ी संख्या है। ओके, 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन, समझ लो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख गुना 10 लाख, 10 लाख को 10 लाख से गुना करोगे तो कितना आएगा? 10 लाख को 100 से गुना कर लो तो आ जाता है 10 करोड़। ओके, और फिर उसको 10 करोड़ को 1000 से गुना कर लो तो 1 लाख करोड़। दिस इज 1 लाख करोड़ टाइम्स बढ़ गया एंजाइम कैटालाइजेशन का रेट। दिस इज अ मिलियन टाइम्स फास्टर। सो सेलुलर कैटलिस्ट आर विथ सम नोटेबल एक्सेप्शन, ये बता रहा है कौन कौन सा, हम बताएंगे आपको बायो कैटलिस्ट कौन से हैं। प्रोटीन्स है, सेलुलर कैटलिस्ट आर विथ सम नोटेबल एक्सेप्शंस, प्रोटीन्स है, बिकॉज सम RNA molecules have enzymatic activity. We will discuss in chapter 26 and 27. Again, with a few exceptions, each enzyme catalyzed a specific reaction and each reaction in a cell is catalyzed by a different enzyme. तो ठीक है, इसी वजह से क्योंकि सब सबस्ट्रेट को स्टीरियो स्पेसिफिकली फिट होना है एक्टिव साइट में, तो अलग अलग सबस्ट्रेट का अलग अलग सरफेस स्ट्रक्चर है तो वो अलग अलग एंजाइम लगेगा। ऑल्दो बहुत तरह के कपल्ड रिएक्शंस हैं जिसमें एटीपी एडीपी, एटीपी से एडीपी कन्वर्जन हो रहा है, बहुत सारे हैं, उनका दूसरा वाला सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो रहा है, लेकिन पहला वाला सबस्ट्रेट का जो साइट है वो सब अलग अलग होगा, अलग अलग एंजाइम। तो इसलिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत है हमें, हर रिएक्शन को कैटलाइज करने की जरूरत है, तो बहुत तरह का एंजाइम हमको चाहिए। अगेन विथ फ्यू एक्सेप्शंस, ईच एंजाइम कैटलाइजेज ए स्पेसिफिक रिएक्शन, कुछ एक्सेप्शन है लेकिन मोटा मोटी सारा एंजाइम, एक एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करता है, एंड ईच रिएक्शन इन ए सेल इज कैटलाइज्ड बाय अ डिफरेंट एंजाइम। Thousands of different enzymes are therefore required by each cell. The multiplicity of enzymes, their specificity, the ability to discriminate between reactants, and their susceptibility to regulation gives cells the capacity to lower activation barriers selectively. क्योंकि फीडबैक में एंजाइम जो है खुद से अपने आप को फीडबैक मैकेनिज्म भी करता है, क्योंकि एंजाइम को रेगुलेट करने की भी आवश्यकता है ना, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज करता है, अभी हमको उस रिएक्शन के प्रोडक्ट की आवश्यकता है दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ देर के बाद आवश्यकता खत्म हो गया उसका, तो हमेशा थोड़ी उसको प्रोड्यूस करते रहेगा। तो क्या हुआ, आवश्यकता खत्म हो गया, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज नाउ गेटिंग एक्यूमुलेटेड। An accumulated product will it will exert a negative feedback mechanism on the at the gene level. Now the translation of that enzyme will be stopped. और फिर बाद में जो जितना एंजाइम बच गया उसका हाफ लाइफ होता ही है, वो फिर अपने एक प्रोटियोलाइटिक मैकेनिज्म भी होता है साइटोप्लाज्म में, यूबिक्यूटिन पाथवे, उसे रिसाइकल कर देगा। So thousands of enzymes are required। जब अपने आप वो फिर रेगुलेशन भी होता है, हम देखेंगे आगे चैप्टर में किस तरह का रेगुलेशन है। द कैपेसिटी टू लोअर एक्टिवेशन बैरियर्स, दिस सेलेक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस बाय अलाउइंग specific reaction to proceed at significant rates at particular times. Enzymes determine how matter and energy are channeled into cellular activities. तो life processes के लिए this enzyme is having a very fundamental role. Okay, so पहले evolutionary processes में first ribozymes appeared. ओके, पहला एंजाइम जो था राइबोजाइम था, एंड देन प्रोटीन्स स्टार्टेड फंक्शनिंग एज एंजाइम्स। इस पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस में 2 बिलियन साल लगा, सोच लो, डिफरेंट एंजाइम्स, अलग अलग तरह की स्पेसिफिसिटी इवन। ओके, एंजाइम डिटरमाइन हाउ मैटर। अब देखिए
The thousands of enzymes catalyzed chemical reactions in cells are functionally organized. ये सब आप जानते ही हो, हजारों तरह के एंजाइम कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन है, उसको आप फंक्शनली जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक कंसिक्यूटिव रिएक्शन प्रोसेसेस, सीक्वेंस ऑफ कंसिक्यूटिव रिएक्शन प्रोसेसेस में, क्योंकि एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट है, फिर उसका दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे का रिएक्टेंट है, तो एक सीरीज में आप पाथवे बना सकते हो. दिस इज कॉल्ड पाथवे इन विच द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन बिकम्स रिएक्टेंट इन द नेक्स्ट. सम पाथवे डिग्रेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल. कुछ पाथवे ऐसे हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं, और कुछ पाथवे ऐसे हैं जो माइक्रोमोलिक्यूल्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स में बदलते हैं. तो वो वाले पाथवे जिसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स में बदले वो कैटाबोलिज्म हो गए. ठीक है. सम पाथवे डिग्रेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल एंड प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट chemical energy and convert it into a form useful to the cell. So ये हो गया आपका माइक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल में, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन इन ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, ये हो गया आपके कैटाबोलिज्म. ठीक है. And together, or in this process we get the energy, convert in extract the chemical energy and convert it into form useful to the cell. तो हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? एटीपी के फॉर्म में, जो कि सेल के लिए काम की चीज है. Together these degradative free energy yielding reactions are designated as catabolism. The energy released by catabolic reactions drives the synthesis of ATP, and as a result of the cellular concentration of ATP is far above its equilibrium concentration. हम बताए थे कल आपको, सेल के अंदर ATP का कंसंट्रेशन कितना है? 0.2 मिलीमोल, 2 मिलीमोलर के लगभग, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था? 2.22 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 इक्वलाइज सेल में. कितनी दूर है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से? सो ऑलमोस्ट ऑल द ATPs जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, सभी ATP कन्वर्ट हो जाएंगे ADP में जब भी उसकी जरूरत होगी, और जब एंजाइम प्रेजेंट रहेगा तब, बैकवर्ड नहीं होगा. Similarly, so that delta G for ATP breakdown is large and negative. Similarly, catabolism results in the production of not only ATP, catabolism also results in the production of electron carriers such as NADH and NADPH. तो ये इलेक्ट्रॉन कैरी करने के बाद NADH हुआ है. NADH इज इलेक्ट्रॉन कैरियर. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लेने के पहले जब ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में था, तो इसको हम लिखते हैं NAD+. ठीक है. NAD+ रिड्यूस होके इलेक्ट्रॉन कैरियर बना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. हम बताए ही थे आपको, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन. तो पहले ये NAD+ था, ऑक्सीडाइज्ड होकर के रिड्यूस होके NADH प्लस H+. इसको पूरा ऐसे लिखते हैं, NADH प्लस 1 प्रोटॉन H+. दैट इज अ फुल. तो एक प्रोटॉन भी क्रिएट हो गया. और NADPH भी होता है. फिर एक होता है FADH2, वो भी हम देखेंगे आगे. सिमिलरली कैटाबोलिज्म. तो ये सब रिड्यूस्ड एजेंट्स हैं जो कि बाद में इलेक्ट्रॉन कैरियर बनेंगे. ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन ढोए. जैसे एक मजदूर अपना बोझा दूसरे पर दे दिया, दूसरा तीसरा पर दे दिया, तीसरा. तो ये अभी जो ये कैटाबोलिक रिएक्शंस हुए थे, एक तो उसमें एनर्जी जो रिलीज हुआ उसको कैप्चर कर लिया ATP में, एंड जब उसमें ऑक्सीडेशन की जब जरूरत पड़ी कैटाबोलिज्म प्रोसेस में, तो वहां रिडक्शन, यस, ऑक्सीडेशन की जब जरूरत पड़ी, तो क्या हुआ?
NADH ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो है कैटाबोलिज्म प्रोसेस में रिडक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का चल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हुआ तो वो देगा अपना हाइड्रोजन। तो वो जब कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस होगा तो एक एजेंट चाहिए, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ओके। तो जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन भी दे रहा है, तो कोई लेने वाला चाहिए, ठीक है ना। जो लेने वाला होगा वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगा पहले से, तो जब वो लेगा तो उसके बाद वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो लेने के पहले ये NAD प्लस है, H प्लस है, लेने के बाद NADH। तो कैटाबोलिज्म चल रहा है, तो अब समझिए कि जो फ्री एनर्जी लिबरेट हो गया ज्यादा मात्रा में जिस रिएक्शन स्टेप में, वहां पर ATP के रूप में एनर्जी को उसको कैप्चर कर लिया, और जहां पर कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस होकर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो भी वहां पर इलेक्ट्रॉन में भी पोटेंशियल एनर्जी है, वो वेस्ट ना चल हो जाए, तो उसके लिए एक एक्सेप्टर है जो कि NAD प्लस है। अब NAD प्लस एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बन गया NAD प्लस प्लस H प्लस। उसी तरह ये NADPH NADP प्लस H प्लस। अब देखिए, सॉरी, ये पहले रहता है NAD प्लस, और प्लस का रफ देना पड़ेगा आपको, प्लस का साइन यहाँ है, प्लस का साइन चार्ज में नहीं है, NAD उसके ऊपर प्लस, फिर बीच में प्लस, फिर एक प्रोटॉन, ऐसे लिखते हैं। सो बोथ ऑफ विच कैन डोनेट। अब ये रिड्यूस होने के बाद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कहाँ जाकर के, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, नाम ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा से चौथा, और उसका जैसे एक गेंद को अगर सीढ़ी के ऊपर से गिरा होगा तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप गेंद बाउंड करते करते नीचे आएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरा वो बाउंड करते जा रहा है और हर स्टेप पर एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। सो that generate ATP to drive reductive steps in the biosynthetic pathways, both of which can donate electrons in processes that generate ATP। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर आगे इनके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से भी ATP बनाकर एनर्जी निकाल लिया जाता है। अदर pathways start with small precursor। म्यूट कर लो राहुल। Other pathways start with small precursor molecules, ठीक है। एक तरह का पाथवे जो हम बताए अभी आपको, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल हो रहा है कैटाबोलिज्म, और दूसरे में माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल हो रहा है, यानी स्मॉल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से एंड कन्वर्टेड देम प्रोग्रेसिवली, स्मॉल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से वो मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। वो सब क्या हो रहा है, मोनोमेरिक यूनिट ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा S जो है क्या हो रहा है, घट रहा है, including proteins and nucleic acids. Such synthetic pathways which invariably requires the input of energy. So this is anabolism, और anabolism में आपका ATP जो है coupled है, और collectively designed anabolism the overall network of, ऐसा नहीं कि सिर्फ anabolism pathways में ही ATP coupled है, some of the catabolic pathway में भी ATP coupled है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप वहां पर कपल्ड है। Which invariably requires the input of energy are collectively designated as anabolism। एनाबोलिज्म हो गया वो कि माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल और इनपुट ऑफ एनर्जी। The overall network of enzyme catalyzed pathway both catabolism and anabolic, पूरा नेटवर्क दोनों तरह के रिएक्शन का योग जो है ये constitute the cellular metabolism। Now what you see is ATP, which is energetically equivalent nucleoside triphosphate,
सिर्फ एटीपी ही नहीं, इसके इनर्जेटिकली इक्विवेलेंट जो है अदर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो है, जैसे सीटीपी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी, जीटीपी, ये सब भी प्रोड्यूस होते हैं। इनका यूज कम है, ज्यादातर एटीपी ही होता है। कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जहां पर जीटीपी होता है, यूटीपी यूज होता है। इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द